Uh, so basically, today's lecture is very well written already, and so in this lecture, we'll introduce the idea of a real-time operating system, or TOS. यार ये मार्कर खत्म हो गया, नए किधर रखे हुए हैं? हाँ, अच्छा. So OTOS, real-time operating system. So as we talked about this, perhaps in the beginning of the lecture, the real-time operating system is that the one any task that does any task in a given time. The time guarantee is there. So if you simulate or emulate a task and find out कि कितने clock cycle उसको लगते हैं या कितने भी time उसको लगता है, वो उतना ही टाइम आप उसको एग्जीक्यूशन के लिए दे देते हैं. विंडोज वगैरह रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं. उसमें आप माई कंप्यूटर या एक्सप्लोरर पे क्लिक करें तो यू डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक बिफोर द माई एक्सप्लोरर विंडो ओपन. आपको पीडीएफ की फाइल ऑनलाइन डाउनलोड करें, यू डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक. सो एंड सो देयर आर नो टाइम गारंटीज. ये नहीं है कि कोई 2 सेकंड के बाद वो कह दें कि कोई 2 मिनट के बाद वो टास्क जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए विद इन 2 मिनट्स या विद इन 1 मिनट. Our tasks are based on the idea that every task will is very small execution time, and it does not take the maximum time it is allotted. So and often these हमजा मलिक, is this lab modems हम नहीं पढ़ेंगे. मॉडम का आईसी हमारे पास इस वक्त नहीं है, वरना हम जाहिर है वो आईसी यूज करके मॉडम भी पढ़ लेते, लेकिन मॉडम की आईसी भी नहीं है हमारे पास, जो आपको भेज भी नहीं सके हम. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डू द लास्ट लैब टुडे विल बी टुडे इज द लास्ट लैब, एंड दैट इज ऑन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड so this tasks are most tasks are often run in periodic way, like LED blink करना है 1 सेकंड के लिए ऑन 1 सेकंड के लिए ऑफ, या कोई भी काम करना है, there is always some periodic sense to it. So um, so these tasks are many of these tasks are periodic tasks. किसी कोई भी अपने अलार्म चेक करना है, कोई गाड़ी को अपने चेक करना है कि वो किसी से हिट तो नहीं करने लगी. So you don't want to create an interrupt when the car is almost going to hit something in front of it. So the best idea would be to check if there is anything in front of the car after every few milliseconds. So प्रोएक्टिव काम करना चाहिए, बजाय इसके कि जब मुसीबत सर पे आ जाए और फिर आप उसको कुछ करने की कोशिश करें. इंटरप्ट भी रखें, यू कैन कीप इंटरप्ट फॉर वर्स्ट केस सिनारियो, बट the worst case thing you is you keep interrupts, but worst case scenario. But regular running is not like that. In regular running, you check everything, every sensor in after a period of time. So these sensor reading is done through periodic tasks. कोई LEDs blink करने हैं, and periodic task, each task can be given something. Is like hiring a person कि तुम्हारा काम ये कि तुम ये करो, तुम्हारा काम है तुम ये करो. So basically, operating system takes over the whole system, microcontroller and whatever embedded system is.
and each task becomes the person that the operating system hires to do something. So if you look at this, the periodic tasks often look like this. So if you have a periodic task which runs after 50 milliseconds, so after every 50 milliseconds, there you can say start this task running after 2 seconds or 5 seconds or 10 seconds. कि कितनी देर बाद इस टास्क को स्टार्ट करना है once the system is on. तो इसको जो शुरू की डिले है, you can set that, but usually it is 0 seconds. So a task will run for few milliseconds. This is the time of execution of a task. This is the time of another process execution of a task. So this is the maximum time that this task can take, say 10 milliseconds. Now it doesn't have to run. This is a very important part. This doesn't have to run exactly after 50 milliseconds. The most important thing is that it should run between 50 to 100 milliseconds. It should run at least once. It doesn't have to run. आप प्लीज रिपीट कर देंगे जो आपने कहा है अभी. अभी ये कह रहा हूँ कि it doesn't have to run exactly at the clock of 50 milliseconds, like it's shown in the graph here. ग्राफ ठीक करना यार, ज़रा साइड पे हो गया. सर ये ग्राफ किस चीज का है? This graph is time. This task execution, तो task एक 1 है, task 1 execution. This time in milliseconds. तो खत्म हो गया. सर प्लीज कैमरा को का जो फोकस है वो चेंज कर देंगे, वो कैमरा फोकस नहीं कर रहा सही से. कैमरे का फोकस भी ठीक करना यार, उधर से जाके ना. ये चीजें बताया करें लाजमी है. नीचे होगा, इसको बंद करें यहाँ से. ऑफ है. हाँ फिर तो फोकस सही होना चाहिए. हाँ हाँ. Right. So so this is a task 1, graph of task 1. So this task has a 50 millisecond period, like blinking an LED. तो LED को ऑन ऑफ करना है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है, but I can assume that this takes 10 milliseconds. But it takes few microseconds. Most tasks take few microseconds. But this graph is just a hypothetical graph where a task is taking 10 milliseconds. So 40 milliseconds it is not using the processor. 10 millisecond it is using the processor. 40 millisecond is using. And this is a execution graph of if only one task is running. So basically what I was saying that the task is doesn't have to run exactly on the spot of 50, 100 and 0. A periodic task has the deadline, जिसे कहते हैं ना, deadline of this process task is to execute before 100 milliseconds once. तो ये वाला जो इंस्टेंस है इस टास्क का, सेकंड वन,
वो 50 मिलीसेकंड से 100 मिलीसेकंड के अंदर एक दफा उसको चलना चाहिए। अगर वो नहीं चल पाता तो क्या होगा कि वो डेडलाइन से ओवर हो जाएगा एंड दैट विल कॉज अ क्रैश इन द सिस्टम। So RTAS, that RTAS design, that there will be, we say that there is a design problem. The engineers didn't design this RTAS this system properly, because one of the tasks could not be complete. So instance, ये वाली पीरियड है इसको रन करने के लिए, ये वाला टाइम है इसको रन करने के लिए, ये वाला टाइम है इसको रन करने के लिए एक दफा। जरूरी नहीं है वो इस दफा एक ही टाइम पे रन करे। और एक और टास्क मैं बना सकता हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है 50 की बजाय आफ्टर एवरी 50 मिली सेकेंड, दैट शुड रन आफ्टर एवरी 20 मिली सेकेंड। तो एवरी 20 मिली सेकेंड अब जब रन करेगा तो यहां पे आके क्लैश हो रहा है कि 0 पे किसने पहले रन करना है, 50 मिली सेकेंड वाले ने रन करना है या 20 मिली सेकेंड वाले ने रन करना है। टास्क 2 has a frequency of 20 millisecond. It has a execution time of 5 millisecond. So it starts from here, 20 millisecond है, ये टास्क है, इसकी 50 मिलीसेकंड फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, सॉरी, और इसने रन करना है, इसका टाइम है 10 मिलीसेकंड। तो कौन पहले रन करे? इनमें यहाँ पे दोनों का क्लैश आ रहा है, 100 पे भी दोनों का क्लैश आएगा। कौन? तो इसके अंदर अंदर दोनों ने एग्जीक्यूट होना है। 100 पे देखें जाके, 100 पे अगर मैं 5 मिली सेकेंड की ग्राफ बनाऊं तो 100 पे जाके दोनों का जो है वो एलसीएम मीट्स एट 100 मिली सेकेंड। So 10 times 5 are 100, 5 times 20 are 100. So both need to run at this time of 100 millisecond. फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? Anyone? Any idea? Any idea? सर 35 मिलीसेकंड के लिए रन करेंगे फिर। दोनों 35 पहले कौन सा रन होगा? यहाँ पे कौन कैसे डिसाइड करेंगे कि दोनों रेडी हो गए टास्क? ये वाला टास्क भी रेडी टू रन है एट 100 मिलीसेकंड टाइम, और ये वाला टास्क भी रेडी टू रन एट 100 मिलीसेकंड टाइम। रन कौन सा होगा? तो उसका सिंपल आंसर ये है कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। दिस हैज अ लो टाइम पीरियड, हायर फ्रीक्वेंसी, हाई टाइम पीरियड, लोअर फ्रीक्वेंसी, तो ये वाली इसकी प्रायोरिटी इससे ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। तो यहाँ पे पहले टास्क 2 रन होगा, फिर यहाँ पे 5 मिली सेकेंड के लिए टास्क 2 रन होगा, और फिर टास्क 1 रन होगा। उसको डिले मिल जाएगी थोड़ी सी 5 मिली सेकेंड की। ये टास्क 1 रन हुआ, लेकिन ये टाइम 150 से ऊपर नहीं जाना चाहिए टोटल टाइम, क्योंकि फिर ये टास्क कंप्लीट नहीं हो सकेगा। तो यूजुअली टाइम इस तरह ही होता है कि हर टास्क का फ्रीक्वेंसी, एग्जीक्यूशन डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, एग्जीक्यूशन डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, सारी टास्क की ऐड करें तो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1। सर हाँ जी, सर आपने टास्क 1 का कहा था इट टेक्स अबाउट लाइक इट नीड्स टू स्टार्ट एट 100 मिलीसेकंड, राइट? हाँ हाँ, लेकिन अगर उसी टाइम पे टास्क 2 भी काफी 100 मिली सेकेंड पे उसने करना है स्टार्ट। जी सर,
सर देखिए टास्क 2 100 मिलीसेकंड में इसलिए ना क्योंकि हम 20 into 5 कर रहे हैं। हाँ हाँ, फिर टास्क 1 किस तरह है, वो किस तरह 100 मिलीसेकंड पे गया, बिकॉज़ 50 into 10 is going to be 500। अब 15 to 2, सर हाउ इज दैट 2 से हम किस तरह मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ये देखना, ये 0 इंस्टेंट है, 50 मिलीसेकंड के बाद चला, फिर कब चलेगा? 50 मिलीसेकंड के बाद उसने चलना है ना, तो 0 पे पहले चला ना, फिर 50 के बाद चला, फिर कब चलेगा? 100 पे। हाँ, तो ये भी 100, 15 to 200 यहाँ पे उसने चलना है, 20 into 5 इसने भी यहाँ पे चलना है, तो दोनों ने 100 मिलीसेकंड की लाइन पे जाके चलना है। सो सर अगर हम दो वो इसलिए कह रहे हैं ना बिकॉज़ इट हैज टू लाइक 100 पे 50 नेक्स्ट 100 पे चलेगा, तो सर फिर टास्क 2 किस तरह कर रहे हैं हम लोग? टास्क हम 2 उसे की क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, जी सर। उसका टाइम पीरियड कम है, फ्रीक्वेंसी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? और टास्क किस मकसद की दुआ है? और टास्क ना सिर्फ प्रायोरिटी टास्क बनाता है, वो ये काम भी करता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी दे देता है उसको। 100 पे उसने पहले टास्क 2 चलाया है और फिर उसने टास्क 1 चलाया है। सर एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी यही होगा, 0 टाइम पे अगर फर्ज करें, बिल्कुल 0 टाइम पे वंस द टास्क स्टार्ट, तो पहले वो क्या करेगा? पहले टास्क 1 चलेगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फिर टास्क 2 चलेगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा कम है। ये टास्क 2 होगा, ये टास्क 1 होगा। फिर टास्क 2 कब चलेगा? 40 पे चलेगा, 40 पे टास्क 2 चलेगा। फिर टास्क 2 कब चलेगा? 60 पे चलेगा टास्क 2। उस वक्त इन दोनों का कोई क्लैश नहीं आ रहा। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, सर 50 मिलीसेकंड तो एग्जीक्यूशन टाइम है ना, तो 10 मिलीसेकंड क्या है? 50 मिलीसेकंड फ्रीक्वेंसी है कि कितनी देर बाद इसको हमने चलाना है। 50 मिलीसेकंड के बाद हमने कोई काम करना है, एक टास्क में एक काम करना है, तो उसको हर 50 मिलीसेकंड बाद हम उसको कह रहे हैं कि करो, तो ये उसका पीरियड है। आप कह रहे हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो पहले टास्क प्ले होगी, तो वो 20 मिलीसेकंड की बात कर रहे हैं या 5? फॉर एग्जांपल अगर टास्क 2 की बात कर रहे हैं तो आप 20 मिलीसेकंड को फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं या 5 मिलीसेकंड को? 5 मिलीसेकंड उसका एग्जीक्यूशन टाइम है, वो प्रोसेसर के ऊपर उसको चलने में कितना टाइम लगता है, वो एग्जीक्यूशन टाइम है। तो 20 मिलीसेकंड हमारे पास फ्रीक्वेंसी हुई। हाँ, बाहर प्रोसेस में चलना है, एक ही प्रोसेसर है, मल्टी कोर प्रोसेसर तो है नहीं हमारे पास, एक ही प्रोसेसर है, तो उसने कोई टाइम तो ले जाना, उसमें कोई और टास्क नहीं चल सकता। जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, उसने सीपीयू को अपने काबू में किया हुआ है, सिंगल कोर प्रोसेसर है, सिंगल कोर सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है। तो एक एक जब प्रोसेस चल रहा है तो उसने दूसरे प्रोसेस तो नहीं ना उसको चला, दो इकट्ठे काम नहीं कर सकता एक प्रोसेसर। ओके हो गया सर। तो ये 20 मिलीसेकंड के बाद ये टास्क चलेगा, 5 मिलीसेकंड के लिए सीपीयू को पकड़ लेगा, फिर 20 मिलीसेकंड के बाद चलेगा 40 पे, तो 5 मिलीसेकंड के लिए सीपीयू को पड़ेगा, फिर ये चलेगा 60 पे, फिर 5 सेकंड के लिए मिलीसेकंड के लिए सीपीयू को अपने काबू में कर ले, फिर ये 80 पे चलेगा और 5 से मिलीसेकंड के लिए या फिर अपने सीपीयू को अपने काबू में कर रखेगा। तो ये तो है टास्क 2। टास्क 1 हर 50 मिलीसेकंड के बाद चलेगा, तो ये यहाँ पे चलना था उसने, लेकिन यहाँ पे चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका टाइम पीरियड कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, टाइम पीरियड कम है, तो इसको वो प्रायोरिटी देगा, इसको पहले चलाएगा फिर दूसरे को चलाएगा। ये भी हो सकता है कि एक टास्क चल रहा है, लेकिन वो टास्क अभी आधा चला है और दूसरे टास्क का जो आ गई है बारी कि वो ऐसा टाइम आता है कि मसलन एक टास्क में चलना था 70 नैनो मिली सेकंड पे और उसने दैट हैज टू टेक अप टू 80 मिली सेकंड। एक और लो हाई फ्रीक्वेंसी का टास्क है, उसको 75 मिली सेकंड पे चलना है,
एक ऐसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब ये कि 70 मिलीसेकंड के लिए चल रहा था, 75 मिलीसेकंड वाला टास्क जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इससे कम है, तो इसको प्रायोरिटी होगी, तो 70 मिलीसेकंड के अंदर जाके वो इसको प्रीएम्प्ट कर देगा। टास्क 2 को इसको प्रीएम्प्ट करेगा, और जाहिर है कि फिर 5 मिलीसेकंड चूंकि ये लेगा टास्क, तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा हो जाएगा, ये आगे चला जाएगा थोड़ा। ये इसने इसको प्रीएम्प्ट किया। Preemption, priority, period, and total time of execution, these are the major parts of this periodic OR task. If without preemption, no OR task can work. तो इसने प्रीएम्प्ट कर दिया इसको, ये टास्क 2 था, उसने टास्क 1 को प्रीएम्प्ट किया, क्योंकि 70 मिलीसेकंड पे टास्क 1 चला, उसने लंबा टाइम देना था। 75 मिलीसेकंड में टास्क 2 रेडी हो गया, उसका टाइम एग्जीक्यूशन का हो गया, तो वो इस टास्क को प्रीएम्प्ट करेगा और हायर प्रायोरिटी वाले या हायर फ्रीक्वेंसी के टास्क को पहले चलाए। ओवरऑल ये टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि टोटल दो साइकिल दो के बीच में कोई एक टास्क जो है ना, कभी ऐसा आ जाए कि किसी एक की डेडलाइन ओवर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपका डिजाइन, तो यूजुअली यही करते हैं कि 80% ऑफ द एग्जीक्यूशन टाइम टोटल होना चाहिए, 20% टाइम देते हैं प्रोसेसर को फ्री रहने का। ये preempt वाली बात, सर हाँ हाँ सर ये प्रीएम्प्ट रिपीट कर देंगे प्लीज? प्रीएम्प्ट, यार मैं ये ओएस का कोर्स नहीं है, बेसिकली मैं वैसे एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ा रहा हूँ। प्रीएम्पशन ये होती है एक टास्क है, ठीक है, उसे 70 मिलीसेकंड पे चलना है, ठीक है, यहां तक समझ आ गई? और जी 70 प्रोसेसर को हॉग कर लिया उसने 70 मिलीसेकंड पे ना। एक और प्रोसेसर है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब उसका टाइम पीरियड कम है, तो उसकी चूंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी इससे, जिसकी ये प्रायोरिटी इसकी कम है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कम प्रायोरिटी वाला टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है और ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला या कम पीरियड वाला टास्क जो है वो रेडी हो जाता है, उसका टाइम आ जाता है कि अब उसने एग्जीक्यूट होना है, इसने 75 मिली सेकेंड पे इसने एग्जीक्यूट होना था, तो ये प्रोसेसर अब वेट नहीं करेगा कि ये पहले खत्म हो और फिर इसको दूसरे को मिले, वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। वो 70 मिली सेकेंड पर चलने वाले प्रोसेस का वेट नहीं करेगा कि वो खत्म हो तो फिर मैं अपना काम स्टार्ट, वो क्या करेगा, इसको प्रीएम्प्ट करेगा। बेसिकली इसके अंदर इसको वो होल्ड स्टेज में ले जाएगा इस प्रोसेस को, और इसको रन स्टेट में ले जाएगा। प्रोसेसर की सर 4 स्टेट, एक किसी भी टास्क की 4 स्टेट हो सकती हैं, रेडी, नॉट रेडी, रेडी, स्टार्टेड, रेडी, रनिंग एंड ऑन होल्ड। तो ये 4 स्टेट होती है, मेरा ख्याल कोई इस तरह का मुझे ज्यादा याद नहीं है। तो रनिंग व्हेन इट इज रनिंग यूजिंग सीपीयू, ऑन होल्ड when it is ready to run but the CPU is busy with some high priority task. रेडी टू रन मीन्स कि इसका टाइम आ गया था, जब भी इसने रन होना था उस वक्त ये रेडी हो जाता है टास्क, ये वाला टास्क आफ्टर 50 मिली सेकेंड इट विल बी रेडी टू रन, इट शुड रन आफ्टर 50 मिली सेकेंड, सो मीन्स के आफ्टर एवरी 50 मिली सेकेंड OS will say that this task is ready to run. But if this is ready to run and another higher priority task is also ready to run, then this will go on hold and other tasks will run. मैं OS का बंदा नहीं हूँ, इसलिए मेरी ये वीडियो आपने किसी से शेयर नहीं करनी, क्योंकि गलत बातें ना मैं बता दूँ। दिस इज जस्ट फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इट बीन इन लॉन्ग टाइम
I used to teach this real-time operating systems at Mentor Graphics के साथ consultancy थी, तो उनको मैं पढ़ाता था, but that's a long time ago, maybe I think 10 years ago. And then I also, for 1 year, I went to NESCOM, सुना होगा नाम आप लोगों ने, to train there, for 1 year, I went there to train their staff on real-time operating systems, how to install them. Before that, they had no idea of real-time operating systems. And basically, real-time operating system के साथ कोई भी आप वो सारे अपने जितने भी गाइडेंस मोबाइल वगैरह या सब कुछ कर रहे थे, वो they were doing them in a super loop. Super loop is not the way to do. So they were using processors. So I helped them port a real-time operating system on those processors, and I also taught them what is real-time system. I used to teach embedded system here also, so it was a good experience anyway. तो ये वाला कोर्स मैं वैसे ही एक लैब बीच में डाली हुई है, क्योंकि इसके बगैर माइक्रो कंट्रोलर, कोई भी माइक्रो कंट्रोलर हो, उसका सारे चीजों को आप कहना कि टच कर दिया will be wrong. We have already left out many modules that are there in the PIC, जिनकी हमने बात नहीं की. Many other communication system like I2C या दूसरा कौन सा होता है, स्पाई, जिसको स्पाई भी कहते हैं, SPI सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम, तो हमने उनको टच नहीं किया. तो लेकिन OS का, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ाता रहा हूँ, मैंने पोर्ट भी किया है कई प्रोसेसर्स पे, सो आई लाइक गिविंग एटलीस्ट वन लैब ऑन दिस. और आप देखेंगे कि OS से जब आप काम करते हैं तो वो आपका वाइल वन में नहीं हो सकता. टाइमर इतनी ज्यादा टास्क अगर हो जाए तो टाइमर को एफिशिएंटली यूज करना एक प्रॉब्लम हो जाती है. तो व्हाट यू नीड इज एन OS, एंड OS इन माइक्रो कंट्रोलर शुड हैव वेरी स्मॉल फुटप्रिंट, मींस उसको रैम कम चाहिए और रोम भी बहुत कम चाहिए, वरना तो वही सारा सिस्टम में, ये विंडोज की तरह तो है नहीं है कि 1 गीगाबाइट का OS इंस्टॉल हो जाए और रैम सारी OS खा जाए, ऐसा सीन नहीं. तो इनमें रैम भी बहुत कम यूज होती है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑन माइक्रो कंट्रोलर, दैट दे आर स्मॉल and tiny OS. There are thousands of OS available. And a question? Yes, sir. Sir, I have a question. Mhm. सर जो प्रीएम्पशन वाला ग्राफ के अंदर टास्क 2 का टाइम पीरियड 75 मिलीसेकंड है ना, और टास्क 1 का 70 मिलीसेकंड, तो सर इसका मतलब है जो टास्क 2 है उसकी प्रायोरिटी कम होगी क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी क्योंकि टाइम पीरियड ज्यादा है. नहीं, टास्क 2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. टास्क 2 ने चलना था, फर्ज करें टास्क 2 ने का टाइम पीरियड था 5 मिलीसेकंड टाइम पीरियड, और ये चलता है 0.5 मिलीसेकंड के लिए चलता है, लेकिन हर दफा इसने 5 मिलीसेकंड के बाद चलना है. तो इसको 75 मिलीसेकंड के बाद 15वीं दफा चलेगा ना ये 75 मिलीसेकंड के बाद. जी जी सर. तो ये रेडी हुआ 75 पे, इसकी फ्रीक्वेंसी 35 मिलीसेकंड. यार ये मार्केट क्यों खत्म हो गया, ये भी है, ये फेंका नहीं था. ये ठीक है. इस टास्क के 35 मिलीसेकंड, तो इस एक दफा ये 0 पे चला, एक दफा 35 पे चला, और एक दफा ये 70 पे चलना था इसने. ठीक है, समझ आ रही है? जी सर. जी जी तो सर. ये इसने यहाँ था 75 पे, 70 पे इसने चलना था. ये टास्क है 5 मिलीसेकंड का. पीछे हम नहीं बात करते, मैं ऐसे एक इंस्टेंट बता रहा हूँ. 5 मिलीसेकंड का है, तो 0 पे चला, 5 पे चला, 10 पे चला, 15 पे चला, चलते चलते इसने 75 पे चलना था. तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है. जी सर. और ये 75 पे रेडी हुआ, उस वक्त ये 35 मिलीसेकंड वाला टास्क अपने दूसरी या तीसरी इंस्टेंस पे चल रहा था.
तो इसने चूंकि उसमें रेडी हो गया तो इसने फिर इसको प्रीएम्प्ट कर दिया, राइट। Yes, तो sir. ये इसकी फ्रीक्वेंसी है टास्क 2। So this is how preemption it happens. So it is important that no two tasks have same frequency. फिर उनकी priority same हो जाएगी. So this is requirement by the OS that no two tasks must not have same frequency. दो टास्क की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होनी चाहिए. तो अक्सर यही करते हैं कि फिर 7 मिलीसेकंड का एक बना दिया, एक 13 का बना दिया, एक 12 का बना दिया, 15 का बना दिया, और फिर सारों के जितनी टाइम निकालते हैं, हर टास्क को चलाने का टाइम निकालते हैं कितनी देर में ये चलता है. ऑसिलोस्कोप पे देख लेते हैं कि शुरू में टास्क स्टार्ट होने से पहले कोई एलईडी ऑन किया, एक ही टास्क चला गया, एलईडी ऑन किया, फिर वही एलईडी ऑफ किया, और उसके बाद ऑसिलोस्कोप पे देख लेते हैं कि इसको ऑन ऑफ होने में कितना टाइम लग रहा है. तो ये एम्पिरिकली फाइंड कर लेते हैं कि इस टास्क को ऑन ऑफ होने में कितना टाइम लग रहा है. तो हर एक का एग्जीक्यूशन टाइम निकाल लेते हैं. दैट एग्जीक्यूशन टाइम मस्ट बी लेस, मच लेस देन के फ्रीक्वेंसी ऑफ द टास्क, कि उसका जो पीरियड है उससे वो एग्जीक्यूशन टाइम शुड बी मच लेस देन द पीरियड ऑफ द टास्क. इस तरह से हर टास्क की कैलकुलेशन होती है. अब एक मिसाइल है, उसकी आपने ट्रैजेक्टरी ठीक करनी है, यू कैन डू इट आफ्टर 50 मिलीसेकंड. आफ्टर दैट इट्स पॉसिबल कि वो लूज कर जाए अपना, फॉर एवर अपना ट्रैक लूज कर जाए, इतनी दूर चला जाए कि उसको वापस लेके आना ये पॉसिबल ना रहे. तो 50 मिलीसेकंड के बाद ट्रैजेक्टरी ठीक करनी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि राइट ऑन 50 मिलीसेकंड इट शुड बी सेट. उसको इस तरह है कि 50 मिलीसेकंड से अगले 50 मिलीसेकंड के बीच में एक दफा उसकी ट्रैजेक्टरी जो है वो सेट होनी चाहिए, और उसको फ्यू मिली सेकेंड लगते हैं उस काम को करने में. तो इस तरह से जो है ना ये टास्क सारे डिसाइड होते हैं. और बड़ा, बहुत ही बड़ा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी मैथमेटिकल एंड थ्योरेटिकल आल्सो, इज आल्सो वेरी प्रैक्टिकल. रियल टाइम को थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल साइड से देखें, आपको काफी बुक्स मिल जाएंगी बड़ी बड़ी, स्टडी ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड फॉर प्रीरेक फॉर दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स. तो आपने अगर इसमें ज्यादा डिटेल में जाना है, यू कैन गो टू द एम्बेडेड सिस्टम कोर्स व्हिच इज स्टार्ट विद द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये ऐसी है. अगर आपने कुछ और इसके बारे में स्टडी करना हुआ या समझना चाहते हैं, तो मैंने एक सिमुलेटर भी बनाया हुआ जो टास्क की सिमुलेट करता है, प्रीएम्प्शन वगैरह देखता है कि कैसे होती है. मैंने खुद सॉफ्टवेयर बनाई हुई है, तो मे बी आई विल लेट यू यूज दैट सॉफ्टवेयर वन डे. तो वो बताता है कि फिर आप उसमें टास्क बना सकते हैं बेशुमार, और वो खुद ही हर एक की प्रायोरिटी डिसाइड करता है, और फिर वो एक ग्राफ बना देता है कि कौन सा टास्क कब एग्जीक्यूट है. उसमें ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम प्रोसेसर का ओवरऑल जो है ना वो कैसे निकालते हैं कि उसके एक हर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन डिवाइड बाय उसका टाइम पीरियड, हर प्रोसेस की ये कैलकुलेशन करके सबका सम करते हैं. दैट सम शुड नॉट बी, कैनॉट बी ग्रेटर देन 1. वो तो प्रोसेसर के काबू में नहीं आएगा, बट इट शुड बी लेस देन, प्रैक्टिकली इट शुड बी लेस देन 80%, यानी 0.8 से कम आना चाहिए. ये वाला टास्क है, ये 5 मिली सेकंड के लिए चल रहा है, ये 0.5 मिली सेकंड के लिए चल रहा है, तो ये 0.5/5 इसका होगा एग्जीक्यूशन रेट. इस तरह हर एक का इस तरह से वो एग्जीक्यूशन रेशियो निकाल लेते हैं. So today's lab is like this. Basically starts with using AUTOS. You can see today's lab. So let me see if it is here. आप लोग को क्वेश्चन पूछें इस पे. Ask some questions regarding this. स्क्रीन शेयर कर. कंट्रोल भी मुझे दे दे. हाँ इसे होता है, कंट्रोल भी दे सकते हैं आप मुझे. मैं रिक्वेस्ट करूंगा. Okay, so this is the lab, the devil inside.
Really, it's a double. The real-time operating system takes care of everything regarding the hardware. So it creates an abstraction layer on top of the hardware, so that you just worry about how to create tasks and how to execute them. Rest of the कि किसने कब execute होना है, ये सारा काम जो है OS जो है वो करता है. So OS becomes the owner of the system. So this is a task which runs after every 5 milliseconds. 50 मिलीसेकंड का टास्क है और इट रन आफ्टर फॉर 5 मिलीसेकंड. इसमें ग्राफ सही नहीं बनाया हुआ, इसमें टाइम 5 मिलीसेकंड का तो दिखाया हुआ है, लेकिन पीरियड क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है ये सही नहीं इसमें बताई हुई. सो दीज टास्क आर कॉल्ड प्रायोरिटी टास्क. जरूरी नहीं है प्रायोरिटी टास्क हो. और टास्क में some any task that runs has to be deterministic time wise, कि इसको टाइम इससे ज्यादा नहीं लगेगा. देन दैट्स, अब CD ROM है, आप इसमें कोई फाइल ओपन करनी है तो इट मे टेक वेरी लॉन्ग टाइम. दैट विल नॉट रन इन आवर टास्क बेस्ड सिस्टम, नॉट पॉसिबल. यार ये किधर है इसमें, ये करते हैं. So task one is basically what you have here is this is the it use RTAS. और अगर आप अपना नई आपको आईडी इंस्टॉल करनी पड़ेगी पिक की, विच इज बाय CCS. CCS इस कंपनी है, उनकी ये आईडी है. ये इसका एक फायदा ये भी होगा कि आपको लर्न करेंगे कि एक ही आईडी नहीं है, कई आईडीज होती हैं और उन सब में फर्क होता है. किसी भी प्रोसेसर वही है, लेकिन उनकी डेफिनेशन, पोर्ट डेफिनेशन का में पोर्ट बी की बजाय उसको PB कह सकते हैं या PC कह सकते हैं पोर्ट C को, तो नाम फर्क हो जाते हैं. डेफिनेशन कैन चेंज. सो बट so it's nice to have an look from another ID point of view कि उसमें C में क्या चीजों के नाम होते हैं. When it comes to so if you go to RTAS and you press F1 you will get the help. यहाँ पे इसका क्लिक करके RTAS पे यहाँ पे माउस रखें यहाँ पे और फिर F1 हेल्प क्लिक करें तो आपको इसकी डेस्कटॉप किधर है. Right. So we are not going to into detail of this RTAS. Basically, what we are doing is we are just trying to run simple RTAS with some processes and see how nicely this RTAS uses timer 1, so you cannot use timer 1 for your own purpose. You can change it to timer 3. It needs just an 8-bit timer to run. So you can use any other timer if you like. So it creates a task that that blinks an LED after a certain time. इसमें किधर गया है कोड, किधर होगा माइक्रो सी. ओ CCS किधर है, CCS किधर है. चलो so this is the RTAS.
शेयर स्क्रीन कर लें। किधर गया वो? हाँ, ये so this is the ATAS. Can everyone see this? क्यों नहीं है? हैं? Your screen sharing is paused. क्या मिनिमाइज हो गया? All right. So this is ATAS based this ID. इसमें आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यू विल सी उसका पूरी डिटेल दी हुई है ना, कैसे प्रोजेक्ट बनाना, मैनुअल, राइट। तो इसमें जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसमें शुरू में आप बता सकते हैं कि कौन कौन से आपने टाइमर यूज करने हैं और सब कुछ। तो इसकी आईडी बहुत मजे की है, मच बेटर देन द वन, आई लाइक दिस वन मच बेटर देन माइक्रोसी। इट्स जस्ट आइडिया टू गिव यू के हर तरह के आइडिया लिस्ट करते हैं। यू आर इंजीनियर, यू आर नॉट लाइक हैं, टेक्नीशियन नहीं है आप लोग। बस एक चीज लर्न कर ली और उसी को जो है ना सारी उम्र जो है ना उसको ही फॉलो करते रहे आंखें बंद करके। यू नीड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग, फील्ड में जाएंगे तो आपको नई सॉफ्टवेयर आपके वाले कर देंगे उसका और उसको कहेंगे अच्छा अब शुरू हो जाओ। एंड यू हैव टू शुड बी एबल टू गियर अप एंड स्टार्ट रनिंग फुल स्पीड इन मंथ और सो। तो ये नहीं होता कि बस जी एक चीज आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि जी मैंने तो CCS यूज किया था या मैंने माइक्रो C यूज किया था तो अब मैं ये नहीं कर सकता। तो this is the scene. So here we are creating our ATAS. ATAS किधर गया? ये ATAS इसको अगर आप F1 दबाएंगे तो ATAS की सारी हेल्प आ जाएगी, या इंडेक्स में सर्च कर लें ATAS। तो ये ATAS के काफी सारे जो है ना थिंग दैट यू कैन डू इन ATAS रन, दिस इज व्हेन द ATAS टास्क रनिंग। ATAS टर्मिनेट, कोई भी टास्क आप टर्मिनेट कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। और टास्क जो है सर नजर सर आ वो रहा है हेल्प वाली स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, कौन सी? हेल्प वाली सर जो आप जिस पे कर रहे हैं कुछ। वो नहीं शेयर हो रही? अच्छा, ओहो, राइट, स्टॉप शेयर, शेयर स्क्रीन, अब ठीक है, अब नजर आ रहा है? यस सर। तो ATAS की डिफरेंट फंक्शन कर सकते हैं। ATAS के अंदर ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है which has all these methods. If you talk about it as a class, if you call that like that, मुझे नहीं पता क्लासेस का इतना। So these are all the methods. ATAS run, ATAS terminate, ATAS run का मतलब ये कि आप शुरू कर दो ATAS को चलाना। तो आप शुरू में कुछ काम कर सकते हैं, पोर्ट सेटिंग कर सकते हैं, किस पोर्ट ने इनपुट बनना है, किसने आउटपुट बनना है, कोई सीरियल पोर्ट सेट कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद जब आप कहते हैं ATAS run, that's while one kind of thing, then you can't do anything. ATAS run के बाद की इंस्ट्रक्शन कब चलेगी? जब आपने ATAS run के किसी टास्क में आप कहते हैं ATAS terminate, जब वो टास्क चलेगा और कहीं वो उस जगह पहुंच जहाँ ATAS terminate लिखा हुआ है तो ATAS run के बाद की लाइन चलेगी। वरना once you say ATAS run, nothing will run else, it will only run the task that you have. It can be इंटरप्ट चलेंगी लेकिन अदरवाइज सिर्फ टास्क आपके चलेंगे जो आपके हैं। ATAS terminate, ATAS enable, सम टास्क ऑल द डिसेबल। और इसमें टास्क में जो है ना वेरिएबल पासिंग जो है ना वो थ्रू मैसेज ही होती है, वैसे नहीं होती, इसकी हम ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। ATAS यील्ड का ये मतलब होता है कि अभी लो प्रायोरिटी पे चले जाओ और किसी और को अगर कुछ करना है तो करे। So every task should call ATAS yield at the end.
तो ज्यादा मैं इसमें नहीं करता। आटा स्टैट्स आप स्टैट्स ले सकते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये एक टास्क जो है ना वो कितनी दफा चला और हर दफा चलते वक्त उसने कितना सिस्टम का टाइम यूज किया। तो इससे आप जो है ना वो टाइम भी निकाल सकते हैं कि टास्क कितनी देर के लिए चला और उसने कितना टाइम यूज किया। सो दिस इज वेरी यूजफुल थिंग, आटा स्टैट्स। So this is basically what ARTAS is. Very simple, very powerful ARTAS. And I will respect कि आप अपने प्रोजेक्ट में ARTAS यूज करें, जो so that you can say कि जी मैंने तो ARTAS पे भी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की हुई है. That is very important. So I'll give extra credit in the projects who use ARTAS in their project. I'll definitely give extra credit. So प्लीज ट्राई टू यूज दिस, चाहे ट्रैफिक लाइट का हो, चाहे भी कोई भी हो, वो आटास से चलता है। तो नाइस आइडिया टू डू यूज दिस आटास। सो दैट्स एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर बड़ा सिंपल है, सो यू कैन गो हेड एंड डू योर लैब। था नहीं है आज का। ऑल मेनी ऑफ यू मे हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड CCS compiler, so it should not be very difficult to start today's lab. So any questions now? सर सिंटैक्स वगैरह लैब मैनुअल में है? लैब मैनुअल LMS पे पड़ा हुआ है। लैब मैनुअल इज देयर ऑन LMS। ओके सर। जरा लोग मुझे चैट में मुझे बताएं कितने लोगों ने यस करके, कितने लोगों ने ये CCS कंपाइलर इंस्टॉल किया हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। अल्लाह आप सबको खुश रखे। वेरी गुड, वेरी गुड। So these are the guys, you know, who know the value of doing things that time. I really like all of you. Thank you very much. हमजा मलिक, ये कोई सवाल है पूछने वाला? मैं जवाब दे दूंगा तो फिर कौन होगा जो मेरे घर पे पहरा देगा? CIA और पता नहीं क्या क्या FBI सारे मेरे पीछे लग जाएंगे। सही बात है सर। क्या सवाल पूछा है यार आपने? ये तो ऐसे ही है कि सड़क पे खड़े हो कि मैं कहना शुरू कर दूं कि जो है ना वो ज़ियाउल हक के जहाज में मैंने बम रखा था, मैं आमों की पेटियों के अंदर। सर रिकॉर्डिंग ऑन है और YouTube पे जानी है। हैं? ओए बंद करो रिकॉर्डिंग। चलें खैर।